میرے شوہر کا سبزیوں کا کام تھا۔ جب شوہر نے پیسے ادھار لے کر بڑا کام شروع کیا، کچھ وقت تو فائدہ ہوا، پھر اچانک ہی شوہر کا کاروبار ڈوب گیا۔ اس صدمے سے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بستر سے لگ گیا۔ شوہر کے علاج کے لیے مزید پیسے ادھار لیے اور قرضے میں ڈوبتے چلے گئے، پر شوہر نہ بچ سکا۔ شوہر کے مرتے ہی قرض دار اور پریشان کرنے لگے، پر جب ہم قرضہ نہ دے سکے تو قرض دار مجھے اور میری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور دروازے پر دستک بار بار جاری تھی۔ میں کمرے سے نکل کر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی بشیرے پر نگاہ پڑی۔ وہ غصے سے بھویں اور آستینے چڑھائے کھڑا تھا۔ میں آج اپنی رقم لیے بغیر واپس نہ پلٹوں گا۔ مجھے دیکھتے ہی انگلی اٹھا کر بولا تو میں پریشان ہو گئی۔ تم مجھے کب سے ٹال رہی ہو؟ اب رقم واپسی کی مدت ختم ہوئی بھی عرصہ گزر گیا، آج تو اپنا حساب صاف کرو، نہیں تو میں پولیس کو بلوا کر تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو جیل کی ہوا ضرور کھلاؤں گا۔ جیل کا نام سن کر میری سٹی گم ہو گئی، مگر میں ابھی تک پیسوں کا انتظام نہیں کر سکی۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے تھوڑا وقت اور دے دیں، میں نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ میں نے تمہارے شوہر کو پیسے ادھار دیے تھے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال تک وہ میری ایک ایک پائی واپس کر دے گا، مگر یہاں تو تیسرا سال چڑھ گیا اور مجھے دور دور تک اپنی رقم واپسی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ آج تو میں حساب برابر کر کے ہی رہوں گا۔ وہ چراغ پا تھا، اس نے غصے میں لکڑی کے دروازے کو ٹھوکر دے ماری تو دروازہ میرے پاؤں میں آ لگا۔ میرے منہ سے ایک دم چیخ نکلی، پاؤں سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میری مدد کو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں آج رقم لیے بنا واپس نہ جاؤں گا۔ اس نے ہٹ دھرمی سے مجھے ایک بار پھر سے انگلی دکھائی اور گھر کے باہر تھڑے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میرا نام نرگس ہے۔ میری تمام زندگی غربت کی چکی میں ہی پستے ہوئی گزری۔ مصیبت اٹھاتے اور بھوک برداشت کرتے کرتے نہ جانے کتنے ہی سال بیت گئے۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ شاید میں بری قسمت لے کر پیدا ہوئی ہوں۔ ماں باپ بھی غریب تھے، انہوں نے جیسے تیسے کر کے ہم سب بہنوں کو رخصت کر کے اپنے گھر کا کیا اور سکون کا سانس لیا، مگر شوہر کے گھر میں بھی کوئی خوشحالی راس نہ آئی۔ ابا نے اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہم سبھی بہنوں کو چھوٹی عمر میں ہی رخصت کر دیا۔ جو جیسا رشتہ ملا ابا نے بس بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کی۔ میرے شوہر کا نام نذیر تھا، وہ سبزیوں کا کام کرتا تھا۔ میری بدنصیبی کی شادی کے بعد شوہر نے پیسے نہ ہونے اور غربت کا شکوہ شروع کر دیا کہ جیسے اس کے غریب ہونے کی وجہ میں ہی ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے، تو ہی نصیب کی تنگ ہے۔ ابا بھی اماں کو ہمیشہ یہی تانا دیا کرتے تھے کہ تو نے 6 بیٹیاں پیدا کر کے میرا نصیب تنگ کر دیا ہے، جبکہ شوہر بھی یہی الفاظ کہتا۔ میں چپ چاپ برداشت کر لیتی، اور کرتی کیا؟ میں اپنے نصیب سے نہ لڑ سکتی تھی اور نہ ہی خدا سے شکوہ کر سکتی تھی۔ میرا کون سا میکا اتنا مضبوط تھا کہ یہاں سے واپس بھی جانے کا سوچتی؟ اتنا ہی بہت تھا کہ کم از کم میرا شوہر اس پر ہاتھ تو نہ اٹھاتا تھا، بس زبان کی مار ہی مارتا تھا۔ ہاتھ بھی اٹھا لیتا تو میں کیا کر سکتی تھی سوائے چپ چاپ مار کھانے کے؟ ویسے میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے زبان نہ چلائی تھی اور نہ ہی اس کی خدمت میں کبھی کوئی کمی آنے دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا شکوہ صرف زبان کی حد تک ہی رہا۔ میں ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرتی کہ اس نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے تھے اور کسی کا محتاج نہ کیا تھا۔ ویسے بھی جتنا پیسہ ہوتا ہے رب نے اتنا ہی حساب لینا ہے، تو وقت کی روٹی مل جاتی تو بھوکے نہ سونا پڑتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے شوہر سے کبھی بڑی بڑی خواہشیں نہ کی تھی، نہ ہی مجھے کوئی رنگ برنگے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ میں قناعت پسند تھی اور سادہ زندگی گزارنے میں بھی خوش تھی، مگر میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ وہ بھی دنیا کی آسائشوں سے لطف اٹھائے۔ وہ ہمیشہ ہی زیادہ پیسے کمانے کے خواب سوچتا رہتا، اس کے لیے وہ مجھے بھی مجبور کرتا کہ میں باہر نوکری کی تلاش میں نکلوں۔ میں نوکری کر بھی لیتی، مجھے لوگوں کے گھر میں کام کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمارے علاقے کی کئی عورتیں صبح سویرے نکل جاتی اور شام گئے گھر لوٹتی۔ وہ مختلف گھروں میں کام کیا کرتی، اگر میں ان سے کہتی تو مجھے آسانی سے کام مل سکتا تھا، مگر اوپر تلے بیٹیوں کی پیدائش کے بعد میں گھر سے باہر نکلنے سے قاصر تھی۔ میں بیٹیوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جاتی؟ ظاہر ہے مجھے ہی ان کو سنبھالنا تھا، گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میری ساس تو خود چارپائی سے لگی پڑی تھی، اس کو تو خود کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں وہ میری بیٹیوں کو کیسے سنبھال سکتی تھی؟ مگر شوہر پر تو پیسے کی دھن سوار تھی۔ اس نے ہر پل میرا جینا حرام کر کے رکھا کہ تو بھی پیسے کما کر لا، جیسے محلے کی باقی عورتیں کما کر لاتی ہیں۔ مگر میں اس کی بات سنی انسنی کر دیتی، کیونکہ میرا گھر سے نکلنا محال تھا۔ میں گھر کے تمام کام نمٹاتی اور اپنی ساس کا بھی خیال رکھتی، وہ تو مجھے دعائیں دیتے نہ تھکتی۔ نہ جانے کون سی نیکی کا صلہ تھا جو میری صورت میں ان کو ملا تھا، کیونکہ ان کی باقی 2 بہویں تو انہیں چھوڑ کر چلتی بنی تھی۔ میرے شوہر چونکہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لہٰذا ان کی شادی بھی سب سے آخر میں ہوئی اور ماں کی ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ مجھے اپنی ساس کی خبر گیری کر کے اور ان کا خیال رکھ کے خوشی اور دلی سکون ملا کرتا، کیونکہ میری اپنی ماں کچھ عرصہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ مجھے اس کی خدمت کا موقع نہ مل سکا تھا کیونکہ میں اپنے گھر کی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی ساس کی خدمت کر کے
अजर व सवाब से मिट सकती थी। यही सोचकर मैं उनका ख्याल रखा करती और वो भी मुझे दुआएं देती न थकती। मगर मुझे लगता था कि उनकी आज तक कोई भी दुआ कबूल न हुई थी। उन्होंने हमेशा मुझे बेटा होने की दुआ दी, मगर रब ने मुझे बेटियां ही अता की। हम खुद 6 बहनें थी, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे भी 4 बेटियों से नवाज दिया। मेरे शौहर अपनी किस्मत को यूं ही नहीं रोता था। एक तो गुर्बत की चक्की में पिसते हुए एक अरसा गुजर गया था, दूसरा मैंने बेटियों की लाइन लगा कर रख दी। ऐसे में वो मुझे क्यों न कोसता। मैं भी अपने आप को कसूरवार समझती, चुपचाप उसके ताने बर्दाश्त करती रहती। मेरे शौहर का सब्जियों का काम था जो ज्यादा न चलता था और उनको महीने का ज्यादा मुनाफा न हो पाता। मेरे शौहर के किसी दोस्त ने घरेलू अशिया की खरीदो फरोख्त का काम शुरू किया तो मेरे शौहर को भी पेशकश की कि वो उसके काम में पैसा लगाए तो उसको बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। मेरे शौहर ने अपना इरादा बनाया कि वो भी अपने दोस्त के कारोबार में पैसे डालकर कारोबार करेगा ताकि वो अच्छा मुनाफा कमा सके और अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। मैंने उसको मना भी किया कि किसी और के काम में पैसे लगाना खतरे की अलामत है, हो सकता है कि वो दोस्त तुम्हें धोखा दे जाए। मगर मेरे शौहर की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी थी, दूसरा उसको पैसे का भी लालच था कि किसी तरह उसके हाथ में पैसा आ जाए। लिहाजा उसने इधर उधर से उधार पकड़कर तमाम पैसा कारोबार में लगा दिया। पहले 2 महीने तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मेरा शौहर खुश हुआ तो मैं भी खुश हो गई। मेरे तमाम खदशात दूर हो गए। मैं खामखाई वहम पाल रही थी। मेरे शौहर का कहना था कि कारोबार करने के लिए खतरा तो मोल देना ही पड़ता है। अगर इतना खतरा मोल ना लिया जाए तो कोई भी कारोबार में पैसे ना लगाए, और कारोबार जमते जमते देर तो लगती ही है। मुनाफा और नुकसान तो किस्मत की बात है। मैंने भी अपने तमाम खदशात दूर रख दिए और अपने शौहर की खुशी में शरीक हो गई। मगर मुनाफा सिर्फ 2 महीने ही मिला। उसके बाद मेरे शौहर के दोस्त ने कोई मुनाफा न दिया। उसका कहना था कि काम मंदा होता जा रहा है, इसीलिए मुनाफा ना होने के बराबर है, और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ने के बजाय मजीद खराब भी होता गया। मेरे शौहर का लगाया गया तमाम पैसा कारोबार में डूब गया। मेरे शौहर के दोस्त ने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि उसका कोई भी पैसा नहीं बचा, बल्कि वो तो मेरे शौहर से मजीद पैसों का तकाजा करने लगा ताकि दोबारा से कारोबार खड़ा कर सके। मेरे शौहर का गुस्सा फिर मुझ पर ही आकर टूटा था। उसका कहना था कि तेरी बुरी किस्मत और खराब नसीब की वजह से मेरा चलता हुआ कारोबार ही रुक गया और तमाम पैसा भी डूब गया। मैं हैरान परेशान उसकी शक्ल देख रही थी। मुझे भी उसके पैसे डूब जाने का उतना ही अफसोस है जितना उसको खुद था, मगर फिर भी मौरूद इल्जाम मैं ही ठहरी थी। मैं अपने शौहर को कैसे समझाती। हालांकि मैंने उसको मना भी किया था कि यूं किसी पर एतबार न करे, भले छोटा सा ही सही पर अपना जाती कारोबार करे, मगर उससे बहस फजूल थी। वो समझने समझाने की हद से आगे था। मेरी सास ने मुझे तसल्ली और दिलासा दिया तो मुझे कुछ हौसला हुआ, मगर मेरे शौहर को तो उसकी रकम डूबने का सदमा लग गया। उसने जो सुहाने ख्वाब देख रखे थे वो धरे के धरे रह गए और रकम उधार लेने वाले लोग अपनी रकम का मुतालबा करने लगे। वो भी मार्केट के ही बंदे थे। उनको भी इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि नजीर का लगाया हुआ तमाम पैसा डूब चुका है। लिहाजा अब उनकी रकम वापसी के मुतालबे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मेरे शौहर का सब्जियों का काम भी खत्म था, जबकि नया कारोबार भी नहीं चल सका। हम बड़ी ही मुश्किल में फंस गए थे। हालात इस कदर खराब हो जाएंगे ये ना तो मैंने सोचा था और ना ही मेरे शौहर ने। आज घर में पकाने को कुछ भी मौजूद न था। मैं हमसाई औरत से चंद आलू मांग लाई और वही काट कर हंडिया पकाने को बैठी ही थी कि दरवाजे से अपने शौहर को घर में दाखिल होते देखकर चौंक गई। उसका चेहरा पीला फटक हो रहा था। वो कई दिनों से अपने कारोबार के नुकसान की परेशानी में मुब्तला था, मगर आज से पहले मैंने उसके चेहरे पर इस कदर परेशानी नहीं देखी थी। मैं फौरन ही अपना काम छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी और जल्दी से उसे पानी का गिलास पेश किया। वो गिलास पकड़ता हुआ चारपाई पर बैठ गया और उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। सब खैरियत तो है? मैंने डरते डरते पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। हाँ, बस तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। अभी उसने इतना ही कहा था कि वो एकदम सीना पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। मैं परेशान होकर बाहर की तरफ भागी ताकि किसी को मदद के लिए बुला लाऊं। मस्जिद के करीब रहने वाली शमसी साहब को देखकर मैंने उन्हें आवाज देकर बुलाया तो वो फौरन ही मेरी मदद को चले आए। उन्होंने मेरे शौहर का सीना दबा दबा कर उनकी तबीयत बहाल करने की कोशिश की, मगर कोई असर न हुआ। वो चारपाई पर ढह गया। मेरी सास अंदर से परेशानी पूछ रही थी कि उनके बेटे को क्या हुआ। मैं भागकर उन्हें उनके बेटे की तबीयत के बारे में बताने चली गई। इतनी देर में ही शमसी साहब ने फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया और मैं अपने शौहर के लिए अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। मैं तो हाल से बेहाल थी। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि क्या हुआ। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने कुछ ही देर में बता दिया कि मेरे शौहर को हार्ट अटैक हुआ था और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। मैं अपनी बच्चियों को यतीम होते न देख सकती थी। मैं फौरन सजदे में गिर गई और खुदा से मदद तलब करने लगी। उसकी दवा और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं अपने जानने वाले और करीबी लोगों से कुछ रकम उधार पकड़ने चल दी। मैंने अपने शौहर के भाइयों को भी फोन करके इत्तला दे दी थी, लेकिन वो भी मेरे शौहर की तरह गरीबी थे। फिर भी उनसे जो कुछ बन पड़ा
उन्होंने उसके इलाज के लिए रकम दी। शमसी साहब से जो बन पड़ा उन्होंने किया और उनके तवस्सुत से मार्केट के कुछ लोगों से उधार रकम मिल गई थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह से मेरा शौहर ठीक हो जाए और अपने पैरों पर चलकर घर वापस जाए। वो तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल में रहा। मैंने इसे 1 हफ्ते के दौरान उसके इलाज मुआवजे में कोई कमी न रखी, मगर 1 हफ्ते के बाद भी उसकी सेहत बहाल ना हो पाई और दिल का दूसरा दौरा पड़ने के सबब वो मुझे और बच्चियों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि बच्चियां भी हलकान थी। मैं अपने शौहर की मैयत एम्बुलेंस में डालकर घर ले आई। मेरी सास चलने फिरने से मासूर थी। जवान औलाद का सदमा बहुत बड़ा होता है। वो बार बार गश खाकर बेहोश हो जाती। मुझे अपनी बेटियों को भी संभालना था और सास को भी देखना था, लिहाजा मैं खुद ही उठ खड़ी हुई। अपनी बच्चियों को तसल्ली देती रही और अपनी सास का भी सहारा बनी रही। मेरे शौहर का जनाजा उठाया गया तो घर में कोहराम मच गया। मेरे शौहर के स्वयं के बाद ही मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं किस कर्ब में फंस चुकी हूँ। उधार देने वालों ने अभी से ही दबे दबे लफ्जों में अपनी रकम की वापसी का तकाजा कर दिया था। शायद उनको अपनी रकम डूबती हुई दिखाई दे रही थी। मैं अकेली इतनी रकम का बंदोबस्त कैसे करती? एक तो कारोबार के खर्च से जो पैसा उठाया था वो अच्छी खासी रकम थी। दूसरा, इलाज मुआवजे में भी काफी रकम खर्च हो चुकी थी। मेरे पास तो कोई सोने की ऐसी चीज भी न थी जिसको बेचकर मैं उधार चुका देती या अपने शौहर का इलाज ही करवा लेती। मुझे हर सूरत घर से बाहर कदम निकालना ही था। आमदनी का कोई जरिया न रहा था। हम सबका पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत थी, लिहाजा मैंने हमसाई औरतों से कहकर जल्दी एक कोठी में काम तलाश कर लिया और अपनी बच्चियों और सास का काम सुबह सवेरे निपटाकर घर से काम के लिए निकल जाती और 1-2 घंटों में काम निपटाकर वापस चली आती। मैंने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लिए थे ताकि मैं उस महीने तो गुजारा कर सकूं। मेरी सास को अपने बेटी की मौत का इतना सदमा लगा कि वो भी मेरे शौहर के जाने के बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी और चंद माह में अपने बेटे के पीछे चली गई। अब मैं अपनी बच्चियों को भी काम पर अपने साथ ही ले जाया करती। सास की मौजूदगी में तो मैं उनको घर छोड़कर जाया करती थी, मगर अब मैं उनको अकेले घर में छोड़कर न जा सकती थी क्योंकि उधार लेने वालों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। उनकी रकम वापसी के तकाजे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और मेरी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था, मगर मेरे बस में न था कि मैं उनका उधार चुका सकूं। मैंने अपने शौहर के दोनों भाइयों से भी मुतालबा किया था कि वो मेरी कुछ मदद करें, मगर उन्होंने भी मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उनके पास खुद इतने पैसे न थे तो मुझे कहां से देते। मेरे शौहर ने कारोबार के लिए रकम बशीरे से उधार ली थी। वो गुंडा किस्म का एक शख्स था जो रकम वापसी के लिए बहुत बेताब था। वो तकरीबन रोजाना ही शाम को घर चला आता। एक दिन घर के दरवाजे पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया, जबकि मैं अंदर बेबस बची आंसू बहाती रही। मैं और बच्चियां घर पर अकेली रहा करती, किसी मर्द का साथ न था। मेरी सास से मुझे काफी ढारस थी, लेकिन अब तो वो भी न रही थी। मैं उसका मुकाबला कैसे करती? और वो जाने को तैयार न था। अगर तुम मेरी रकम वापस नहीं चुका सकती तो अपनी बच्चियों को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं उनके जरिए अपनी रकम कमा सकूं। उसके अल्फाज सुनकर मैं कांप गई और कुंडी लगाकर बैठ गई, मगर लकड़ी का टूटा फूटा सा दरवाजा जो बेहद बोसीदा था, उसकी कुंडी टूटने में कितनी देर लगनी थी। मैं अंदर बैठी दुआओं पर दुआएं मांग रही थी, तभी ठोकर मारकर दरवाजा एक ही झटके से तोड़ दिया गया। बशीर अपने चंद आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर तो मैं कांप गई। उसने मुझे और बच्चियों को बाहर चलने का इशारा किया तो मैं चुपचाप अपनी बच्चियों को समेटते उसके साथ चलती। उधार की रकम का खुमियाजा किसी सूरत तो भुगतना था। उसने बाहर खड़ी गाड़ी में हमें बिठाया और गाड़ी चला दी। मैं तमाम रास्ते उसकी मिन्नतें करती रही कि वो मुझे और बच्चियों को छोड़ दे, हमारा इस सब में कोई कसूर नहीं है, मगर उसके सर पर तो शैतान सवार था। उसने मेरी एक न सुनी और मुझे और मेरी बच्चियों को एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटियां रोज पैसे कमाकर इस कोठे वाली मालकिन को देना, तो इसके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। जब पैसे पूरे हो जाएं, तो बेशक तुम अपनी बच्चियों को लेकर चली जाना। वो कहते हुए वहां से चल दिया, जबकि मैं उसकी मिन्नतें करती रह गई। कोठे वाली मालकिन हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को लेकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसने लपक कर मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे और बच्चियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने कभी न सोचा था कि मुझ पर ऐसा कड़ा वक्त भी आएगा। मैं घर से निकलकर कहां पहुंच गई थी। मुझे अपनी इतनी फिक्र न थी, मगर मेरी मासूम बच्चियां, आखिर उनका क्या कसूर था? इससे तो बेहतर था कि बशीरा हमें बेशक जान से ही मार देता, मगर वो हमें जान से मारकर क्या करता? उसकी रकम तो उसको वापस ना मिलती, बल्कि उसे जेल की चक्कियां पीसनी पड़ती। वो काफी सियाना था, अपनी रकम लेता चलता बना था, जबकि हमें जहन्नम में झोंक गया था। कोठी की मालकिन ने हमें मजबूर किया कि हम उसके लिए काम करें। जैसे ही रात हुई, उसने रस्क बर्क लिबास भेज दिया कि मैं अपनी बच्चियों को तैयार कर दूं और खुद भी तैयार होकर बैठ जाऊं। ग्राहक आने वाले हैं। मैं इस काम के लिए हरगिज तैयार न थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि ना तो मैं ये काम करूंगी और ना ही मेरी बच्चियां। इसके अलावा अगर कोई भी काम है तो मुझे बताए, हम सब मिलकर करेंगे और उसके पैसों का नुकसान पूरा कर देंगे। वो जोरदार कहका लगाकर हंसी थी। औरतों को सिर्फ एक ही काम के पैसे मिलते हैं,
इसके अलावा किसी काम का इतना मुनाफा नहीं मिलता कि मेरी रकम वापस हो सके। मैंने तुम लोगों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है, लिहाजा चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। वो धमकी देकर चलती बनी, जबकि मेरी बच्चियां बेहद परेशान और हलकान थी। मैं अपनी बच्चियों को अपनी बाहों के हिसार में लेकर बैठ गई। अब तो कोई फरिश्ता ही मेरी मदद करने को आ सकता था। मैं अभी भी गैबी इमदाद की मुंतज़िर थी। तभी मुझे बाहर शोर की आवाज सुनाई दी और कुछ लड़कियां भागती हुई अंदर आईं। यहाँ से भाग चलो, वो अपना सामान समेटती हुई बोली। बाहर पुलिस की रेड पड़ी, हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं फौरन ही अपनी बच्चियों को लेकर बाहर की जानिब लग गई। पुलिस के हमरा शमसी साहब को देखकर मेरी जान में जान आई। शमसी साहब भी मुझे देखकर चौंक पड़े। ये रही वो औरत जिसकी तलाश में मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। उन्होंने पुलिस को कहा, ये कोठे की मालकिन कब से झूठ बोल रही थी कि यहाँ पर ऐसी कोई औरत नहीं लाई गई। शमसी साहब ने गुस्से भरी नजर कोठे की मालकिन पर डाली तो वो गड़बड़ा गई और पुलिस कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार करके ले गई। शमसी साहब हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हो गए। मैंने बशीरी को जबरदस्ती तुम्हें ले जाते हुए देखा था, लिहाजा मैं फौरन पुलिस की मदद हासिल करने के लिए दौड़ पड़ा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अकेला बशीरे और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर बशीरे को अकेला ही मार्केट में वापस आता देखकर मैं हैरान और परेशान हुआ। और फिर पुलिस ने उससे पूछगछ की तो उसने बता दिया कि उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इस कोठे पर भेज दिया है, लिहाजा हम तुम लोगों की तलाश में इस कोठे तक पहुंच गए। मैं शमसी साहब की बेहद एहसानमंद थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। मेरे पास तो उनका शुक्रिया अदा करने के अल्फाज तक न थे। उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी रोकी। अगर मुनासिब समझे तो मैं आपसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। आप सोच समझ कर फैसला करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ आपका सहारा बनना चाहता हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलते मेरे हाथ कांप गए। मैं बेजान कदमों से नीचे उतरी थी। शमसी साहब से मुझे ऐसी उम्मीद न थी, वो भी अपनी ही किसी गर्ज के तहत मेरी मदद कर रहे थे। मर्द की नीयत का कोई भरोसा न था। शमसी साहब ने ही दरवाजे की मरम्मत करवाई और मैं अपनी बच्चियों के हमरा फिक्र परेशानी में मुब्तला कुंडी लगाकर घर में बैठ गई। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। मर्द के माशरे में तन्हा औरत का जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ था। शमसी साहब की बीवी के इंतकाल को 2 साल गुजर गए थे। उनके तीनों बच्चे शादीशुदा थे। वो नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहा करते थे, जबकि कुछ सालों पहले वो हमेशा के लिए वापस लौट आए थे। न जाने उनके निकाह की पेशकश के पीछे क्या मफाद शामिल था। मैं उस मुश्किल वक्त से गुजर रही थी कि किसी पर भी एतबार न कर सकती थी। एक तो मुझे शमसी साहब की नीयत पर शक हो रहा था और दूसरा मुझे इस बात का भी डर था कि आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने शमसी साहब को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो खामखाही मेरे से फ्री हो रहे थे। उन्होंने पता नहीं मेरे किरदार के बारे में ऐसा क्या सोचा कि मैं उनसे निकाह करने को तैयार हो जाऊंगी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी भी दांव पर लगाऊंगी। मैंने कामकाज के लिए और घर पकड़ लिया। मैं अपनी बच्चियों को भी अपने साथ ही काम पर ले जाती। मेरी बच्चियां काम करने में मेरी मदद करवाती और हम माँ बेटियां शाम को घर वापस लौटती। मेरा गुजर बसर ऐसे ही होने लगा। कुछ अरसे के बाद ही दीगर उधार की रकम लेने वाले भी घर पर आने लगे, मगर मेरे पास इस कदर पैसे न थे कि मैं उनके उधार की रकम चुका सकती। लोगों के घरों में कामकाज करने से जो पैसे मिलते वो सब तो खाने पीने पर ही लग जाया करते, जबकि उसमें से बचत ना होने के बराबर थी। ऐसे में मैं उधार वालों का कर्ज कैसे पूरा करती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। शमसी साहब को देखकर मैं चौंक गई। वो मुझसे अंदर आने की इजाजत तलब कर रहे थे। मैंने उनको एक तरफ होकर रास्ता दिया और अंदर आने दिया। मैंने आपके सामने एक गुजारिश पेश की थी, आज मैं आपका जवाब लेने आया हूँ। शमसी साहब ने मेरे चेहरे पर एक नजर डालकर नजरें झुका ली। मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। मैंने उनको साफ इनकार किया तो वो हैरान रह गए। मगर ऐसा क्यों? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मेरी बच्चियां जवान हो रही हैं, कुछ सालों में शादी के काबिल हो जाएंगी। ऐसे में मैं अपनी शादी करके बैठ जाऊं, मुझे ये गवारा नहीं। मैंने उनको सीधी वजह बताई तो वो इस बात में सर हिलाने लगे। आपकी बात ठीक है और आपकी सोच भी गलत नहीं, मगर ये भी तो सोचें, बच्चियों की रुखसती के बाद आपका सहारा कौन बनेगा? मैं ना सिर्फ आपको सहारा दूंगा बल्कि आपकी बच्चियों को भी अपनाने को तैयार हूँ। वो इसरार करते बोले, मगर लोग क्या सोचेंगे? मेरी कुछ शादी करने की उम्र तो नहीं, और फिर मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे? मैंने परेशानी से कहा, माफ कीजिएगा, आपके वही खानदान वाले जिन्होंने आपके शौहर के मरने के बाद आपको और आपकी बच्चियों को आकर एक दिन के लिए भी नहीं पूछा, और जब वो होंडे आपको और आपकी बच्चियों को अपने साथ ले गए थे तब आपके खानदान में से किसी ने आगे बढ़कर आपकी और आपकी बच्चियों की मदद की थी। आप उनके बारे में सोचकर क्यों हलकान हो रही हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको सिर्फ अपने और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शमसी साहब का जवाब सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो ये सोचा ही ना था कि मैं उन खानदान वालों की परवाह कर रही थी जिन्होंने आज तक मेरी और मेरी बच्चियों की परवाह न की थी।
وہ جو بھی سوچیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اگر شمسی صاحب میرے ساتھ ساتھ میری بچیوں کو بھی اپنانے کو تیار تھے تو پھر مجھے ان کی نکاح کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی۔ مجھے ان پر ایک بار اعتبار کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو مجھے ہی کچھ ہو جائے گا تو میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا؟ میری بچیاں تو ظالم دنیا کے رحم و کرم پر رہ کر برباد ہو جائیں گی۔ شمسی صاحب کی باتوں نے میرے لیے سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی تو میں نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا گھر چند داموں میں بیچ کر شمسی صاحب کے ہمراہ ان کے گھر جا بسی۔ خاندان والوں نے بے حد باتیں بنائی کہ میں چار جوان ہوتی بچیوں کے ہوتے ہوئے خود نکاح کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنی بچیوں کو اعتبار میں نہیں لیا تھا اور ان کو میرے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے خدشات کچھ عرصے میں دور ہو گئے۔ شمسی صاحب بہت بھلے آدمی تھے۔ انہوں نے نہ صرف میرا خیال رکھا بلکہ میری بچیوں کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اتنا پیار اور وقت تو انہیں ان کے سگے باپ نے بھی نہ دیا تھا جتنا شمسی صاحب نے دیا۔ یہاں پر مجھے اور میری بچیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ شمسی صاحب کی بیٹیاں اور بیٹا بھی اپنے باپ کی خوشی میں خوش تھے۔ ان کی بہو کو ہمارے نکاح پر اعتراض تھا، لہٰذا وہ کچھ عرصے بعد ہی اپنے شوہر کو لے کر بیرون ملک جا بسی۔ شمسی صاحب کا کہنا تھا کہ اس نے ویسے بھی یہاں سے چلے ہی جانا تھا۔ ہمارے نکاح سے اسے ایک اور بہانہ مل گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی جو ہی 16 برس کی ہوئی میں نے شمسی صاحب کے خاندان میں ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دوسری بیٹی بھی ایک اچھے گھرانے میں بیاہی گئی۔ باقی دو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں رب کا شکر ادا کرتے نہ تھک گئی جس نے مجھے مشکلات کے دور سے نکال کر میری بچیوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کیا تھا۔ یہ رب کی مرضی پر راضی ہونے اور ہر طرح کے حالات میں اس کا شکر ادا کرنے کا صلہ تھا جو رب نے شمسی صاحب کی صورت میں ایک فرشتہ میری مدد کو بھیجا تھا۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔